السلام علیکم ناظرین، 2022 لبرا خواتین و حضرات کے لیے محبت، شادی اور اپنے پارٹنر کے حوالے سے کیسا گزرے گا؟ ذائچوں کی مکمل ریڈنگ کے مطابق اس ویڈیو میں تمام معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، 2022 لبرا خواتین و حضرات کی رومانٹک لائف کے لیے بہترین سال ثابت ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا، جبکہ کچھ لوگوں کو اس سال اپنی محبت کی زندگی کو دوبارہ پٹڑی پر لانے کے لیے بہت سی کوششوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لبرا افراد کو خاندانی مسائل یا پارٹنر کو کم وقت دینے کی وجہ سے ریلیشنز کو برقرار رکھنے میں مشکل بھی پیش آ سکتی ہے۔ آپ کے لیے مناسب ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑیں اور چیزوں کو دوسرے کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں۔ خوش قسمتی سے اس سال 2022 میں آپ کے ساتھ خاندان اور دوستوں میں سے کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ لبرا مردوں میں سے بہت سے افراد کی شادی 2022 میں خزاں کے موسم میں متوقع ہے۔ محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے بہترین سفر کے آغاز کے لیے یہ بہترین وقت ثابت ہوگا۔ 2022 میں لبرا خواتین و حضرات جوش و خروش کے ساتھ اپنے فیوچر کے متعلق منصوبے اور پلان بنائیں گے۔ اپنے پیاروں کی خوشیوں کے لیے آپ کو معمولی پریشانیوں اور صحت کے معمولی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2022 میں آپ کے لیے ایک قابل تشویش اور قدرے غیر تسلی بخش بات یہ بھی ہے کہ جذباتی نرمی کی وجہ سے کچھ لبرا خواتین و حضرات اپنے کام کی انجام دہی میں کوتاہی کر سکتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ بیرون ملک جانے سے لے کر بیرون ملک سے اپنے گھر واپسی اور بعض لبرا خواتین و حضرات گھر بنانے یا نیا اپارٹمنٹ خریدنے جیسے کاموں میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں لبرا خواتین کے پاس حیرت انگیز مواقع ہوں گے جن سے وہ بخوشی فائدہ اٹھائیں گی۔ مختلف قسم کی دلچسپیاں اور خواہشات آپ کی زندگی میں ایک الگ سا رنگ بھر دیں گی۔ لبرا خواتین کے اندر شاندار محبت کی خواہش پیدا ہوگی اور وہ جن سے مخالف کو جلد ہی اپنی طرف راغب کر پائیں گی، لیکن اس صورت میں آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ دوستوں سے کم از کم ہر بات مت شیئر کریں، ورنہ آپ کے لیے غیر متوقع صورت بھی بن سکتی ہے۔ کسی غیر متوقع صورت میں لبرا خواتین خدا نخواستہ بہتان لگنے جیسی صورتحال کا بھی سامنا کر سکتی ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے یہ ایک سنجیدہ الرٹ ہے، اس لیے آپ کو ان معاملات کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہوشیار رہنا چاہیے اور صبر اور زیادہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ خزاں کے موسم میں لبرا خواتین زیادہ پرسکون اور سنجیدہ ہو جائیں گی۔ ممکن ہے تب شروع ہونے والی سنجیدگی زیادہ عرصے کے لیے ہو۔ ایک کپل کے طور پر لبرا خواتین طاقت اور استحکام چاہتی ہیں۔ 2022 میں آپ کا اپنے پارٹنر پر زیادہ دباؤ ڈالنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایسے لوگ جو اپنی محبت پر یقین رکھنے اور ایک دوسرے سے جدا ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پارٹنر کی زیادہ کیئر کیا کریں اور اس پر زیادہ توجہ دیں، بلکہ بعض اوقات اسے تھوڑا تنہا بھی رہنے دیں۔ اگر آپ جمود جیسی کیفیت میں بھی لطف اندوز ہونا سیکھ جائیں اور خود کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی اہلیت کا مظاہرہ کریں تو سب آپ کے لیے انتہائی اچھا ہو جائے گا۔ ایسی لبرا خواتین جو شادی شدہ ہیں، انہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اعتماد اور افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کے بچوں کو آپ کی معمول سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ سال کے پہلے 6 مہینے یعنی جون تک آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں میں سے کافی لوگوں کو لبرا خواتین کی کسی بھی لحاظ سے مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بچے کی پیدائش کی خوشخبری کے حوالے سے خزاں کا موسم آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ معزز لبرا خواتین و حضرات، کچھ لوگوں کے لیے 2022 ان کی رومانٹک لائف میں بہترین وقت لے کر آ سکتا ہے۔ 2022 میں آپ کا محبت کا ذائچہ انتہائی سازگار رہے گا، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ سٹرگل کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ ایسے افراد کے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات تھوڑے مندی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ مضبوط تعلقات راتوں رات نہیں بنتے۔ اسٹرانگ کنیکشن کے لیے وقت، صبر اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصروف زندگی میں ہلچل کے معاملات میں محبت اور خود سے پیار کرنے والے رشتوں، قرابت داروں اور رومانس کے حوالے سے وقت نکالیں۔
اور اپنے لیے ماحول کو بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام جذباتی ہنگامہ آپ کے لیے تھوڑی دباؤ کی کیفیت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تناؤ سے نجات کے لیے آپ کو ذکر الہی سے مدد لینی چاہیے، نماز اور روزے جیسی عبادات کا سہارا لینا چاہیے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اس کے سامنے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کریں، اپنی جگہ کو پہچانیں، اپنی حقیقی ویلیو کو درک کریں اور خود سے سوال کریں۔ اپنے ماضی کے متعلق اپنے پریزنٹ میں جھانکیں، اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے موجودہ وقت میں رہتے ہوئے حقیقت کی آنکھوں سے پریڈکشن کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیں گی۔ یہ سب آپ کے لیے اچھا سبق اور روحانی بہتری کا سبب بنے گا۔ ہو سکتا ہے اپنے تعلقات میں آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، لیکن آپ کو اپنی ذہنیت مثبت رکھنی چاہیے۔ مثبت ذہنیت آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت انداز میں دیکھنے میں بہت مدد کرے گی۔ حالیہ دنوں میں کچھ لبرل لوگوں کی لائف اتار چڑھاؤ سے بھری ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ حالیہ بریک اپ کی وجہ سے الجھن کا شکار ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، محبت دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں کوئی منصوبہ بندی کی جا سکے۔ یہ وائلڈ کارڈ جیسی ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے پارٹنر کے آنے کی امید رہتی ہے۔ محبت کی دنیا میں آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی حقیقی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ بہرحال محبت میں آپ کے امکانات روشن ہیں، اس لیے آگے بڑھیں اور اچھے وقت سے لطف اندوز ہوں۔ ایسے لبرا خواتین و حضرات جو غیر شادی شدہ ہیں اور کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اچھے امکان موجود ہیں۔ جس شخص سے آپ جڑے ہوئے ہیں اسے اپنے خیالات اور توقعات سے مکمل طور پر آگاہ کریں۔ اس سے آنے والے وقت میں آپ کا اپنے ساتھی کے ساتھ رہنا آسان ہوگا۔ یہ بات چیت آپ کی بہت سی پریشانیاں حل کر سکتی ہے۔ آنے والے وقت میں لبرا خواتین و حضرات کے لیے کافی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت اور اعتماد کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے لائف پارٹنر کے درمیان غلط فہمیاں یا لڑائی جھگڑے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ 2022 میں ایک دوسرے کے لیے موجود رہیں۔ دنیاوی چیزیں رشتوں میں شمار نہیں ہوتی۔ یقینی بنائیں کہ آپ محبت کے تمام مراحل میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس سال آپ کی محبت کی زندگی کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی۔ کچھ لبرا افراد کے لیے ایسے حالات ہیں کہ وہ اپنے سابقہ پارٹنر سے بھی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ موجودہ وقت میں کسی سے اچھے ریلیشن میں ہیں تو اس پرانے ساتھی سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کے موجودہ رشتے میں دراڑ پڑ سکتی ہے۔ پرانے وقت کو خیر آباد کہہ دینا 2022 میں آپ کے موجودہ رشتے کو مٹھاس سے بھر دے گا اور آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے قابل بنا دے گا۔ جیسے بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، جس کے ساتھ بھی رہیں، وفادار ہو کے رہیں۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور آپ کو اپنی قیمت خود کبھی نہیں گھٹانی چاہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسکارپیو یعنی برج اقرب کا 2022 محبت کے حوالے سے کیسا ہوگا؟ شادی، رومانس، ازدواجی اور فیملی تعلقات کے حوالے سے کیسی تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ کے ریلیشنز میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سیاروں کے آپ کے مزاج اور جذبات پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ ایسٹرالوجی کے علم کے مطابق اس سال میں آپ کی زندگی میں ممکنہ طور پر ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز اقرب خواتین و حضرات، آپ کے محبت کے گھر کا حکمران سیارہ وینس یعنی زہرہ ہے، جو برج اقرب کے زیر اثر خواتین میں چند خوبیوں کا مظہر بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اقرب عورت خاصی حسین اور جاذب نظر ہوتی ہے، لیکن اس کی آواز اور لب و لہجہ جن سے مخالف کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر اس کے چہرے کے نقوش دل پذیر نہ بھی ہوں تو اس کی آواز جن سے مخالف کو اس کے سحر میں گرفتار کر لیتی ہے۔ کسی کو پسند کرنے کے معاملے میں اقرب عورت ٹوٹ کر چاہنے والی ہوتی ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے اس کے پارٹنر کو کبھی کوئی شکایت نہ ہو۔
जबकि अकरब मर्द बेहतरीन शौहर और अच्छे बाप साबित होते हैं। अकरब मर्दों की रुमानदी जिंदगी बड़ी हंगामा खेज होती है, लेकिन ये अपने लाइफ पार्टनर के वफादार साबित होते हैं। नाज़रीन, 2022 आपके लिए रुमानदी महाज पर बेहतरीन वक्त ला सकता है, लेकिन यूरेनस की आपके मोहब्बत के घर में होने की वजह से मुमकिन है आपके ताल्लुकात में आजमाइश की कैफियत पैदा हो जाए। लिहाजा आप में से जो शादीशुदा हैं या किसी सीरियस रिलेशन में हैं, उन्हें 2022 में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी और बिलाखिर आप बेहतरी लाने में कामयाब हो जाएंगे। 2022 में अपने उमूमी कामों के दौरान आपकी मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है। ऐसे अफराद जो अपने लिए कोई आइडियल रखते हैं, उन्हें किसी भी वक्त उनका महबूब मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आप 2022 में ऐसी सिचुएशन में भी रहेंगे कि जैसे आपकी मोहब्बत यकदम शुरू हो सकती है, वैसे ही खत्म भी हो सकती है। वीनस की वजह से आपके जज्बात में कभी कभी शॉर्ट टर्म रुझानात बरामद होते रहेंगे। आपको साल के पहले 6 माह में मोहतात रहने की जरूरत होगी। एक लंबे अरसे से किसी रिलेशन में रहने वाले लोग महसूस कर सकते हैं कि उनका रिश्ता गैर मामूली होता जा रहा है। 2022 में आपके लिए अपने पार्टनर का साथ देना उसमें नई उमंगों और हौसले को पैदा कर सकता है। ऐसे अकरब अफराद जो सिंगल हैं या काफी लंबे अरसे से किसी रिलेशन में हैं, उनके लिए यह साल ज्यादा बेहतरीन साबित होगा। ऐसे अफराद जिनकी अपने पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी बन गई है, वो गैर मुतवक्को तौर पर अपने पार्टनर को अपने करीब आता हुआ महसूस करेंगे। इस लिहाज से बाज अफराद के लिए ये एक खुशखबरी साबित होगी। मुमकिन है ऐसी सूरत हाल बन जाए कि आप अपने जहन में खूबसूरत यादों को फिर से पालना शुरू कर दें, जिनमें उन लम्हात को याद करें जो आपने माजी में अपने पार्टनर के साथ गुजारे हैं। सोचे समझे तहाइफ का तबादला, चमकदार पत्तों और फूलों के साथ खुशगवार मौसम की यादें आप और आपके महबूब का साथ आपके अंदर बहार का एहसास जगा सकता है, जिसका असर सारा साल रहने की तवक्को है। ये आपके कानों के लिए सुरीली धुन जैसा हो सकता है, इस बात को सोचते हुए कि आपने कितना वक्त इकट्ठे गुजारा और फिर कितना अरसा जुदा रहे। ये सोचकर आप थोड़ा सैड भी हो सकते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो अफराद मोहब्बत में गहरी दिलचस्पी का इजहार करेंगे, और अगर आप किसी से इजहार करेंगे तो आपको जवाब मुस्बत सूरत में मिलेगा। अगर आप तवील अरसे से किसी चाहने वाले को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन साल होगा जब उसकी चाहतों की कदर करें और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। ऐसे अकरब ख्वातीन हजरात जो अपने खानदान की आबादी में इजाफा चाहते हैं, उनके लिए ये साल सुनहरी मौका लेकर आ रहा है। 2022 में अगर आप खुद में एतमाद की कमी या नींद से बेदारी के बाद नॉर्मल फील न करें, तो आपके लिए मशवरा है कि जागते साथ ही सोशल मीडिया से दूर रहें। अपने लिए सुबह के मामूलात को सेट करें, सुबह सवेरे कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज अपनाएं। ये तमाम बातें जज्बाती तौर पर आपको मुस्तहकम करेंगी और आपकी सेहत के हवाले से अच्छे नताइज मुरतब करेगी। आपका मुस्बत रवैया आपके रिश्ते के तमाम खराब एहसासात को खत्म कर सकता है और आप अपने साथी को इजाफी वक्त देने के काबिल हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख्वातीनो हजरात, किसी नाकामी से सबक सीखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी अधूरी चीज को मुकम्मल कर दें या किसी कच्ची चीज को पुख्ता कर दें। 2022 में आपके तल्लुकात में कुर्बत की सतह बढ़ सकती है। ये तमाम अवामिल आपके पार्टनर और आपको करीब ले जा सकते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो ख्वातीनो हजरात इस साल अपनी जिंदगी की मोहब्बत से मिल सकते हैं। ताहम अगर आप रोमांटिक अटैचमेंट या शादी करने का सोच रहे हैं, तो ऐसी पेशकश के लिए साल का दूसरा हाफ आपके लिए ज्यादा मौजू होगा। शादीशुदा कपल एक साथ इज़्दवाजी रोमांस से लुत्फ अंदोज होंगे। आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर सकते हैं। आपके लिए मशवरा है कि अपने साथी को खुश रखें। आपकी इस्तकामत तमाम रुकावटों को आपके फायदे की तरफ मोड़ने में अहम किरदार अदा करेगी। आपके लिए मुनासिब है कि अगर आप मामलात में उलझकर खराबी से बचना चाहते हैं, तो अपने वकार पर समझौता किए बिना और अपने पार्टनर की इंसल्ट किए बिना तनाज़ात को हल करने की कोशिश करें। ऐसे स्कॉर्पियो मर्द जो सिंगल हैं, आपको अपनी जीत के लिए भरोसा करने की जरूरत है। आप अपने रवैये का मुशाहिदा करें और अपने तबाहकुन रवैये को बदलें। आपके लिए मुनासिब होगा कि आप अपनी मोहब्बत को ज्यादा देर खुद से ओझल मत रखें, वरना आप फैसलाकुन बर्तरी से महरूम रह सकते हैं। आपके लिए मुनासिब है कि दिलचस्प जगहों पर जाएं और अपनी पसंद की औरत से बिला झिझक बात करें।
कुछ गलत हो जाने पर आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने किसी ड्रीम के लिए लड़ेंगे तो यकीनन आपको खुशी मिलेगी। साल के दूसरे हिस्से में सफर की वजह से आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर हो सकते हैं। 2022 में अकरब मर्द जो शादीशुदा हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी एनर्जी को फरोग देने की कोशिश करें ताकि आपकी बीवी से उसकी मामूली जिद और चिड़चिड़ेपन की वजह से झगड़े न हों। अकरब खवातीन, जरूरत से ज्यादा फख्र और बढ़ती हुई तनकीद आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आप में से जो कंवारी हैं, अपने जज्बात की इश्तियाल अंगेजी पर काबू पा लें तो आपकी शादी जल्द हो सकती है। आपको अपनी जाती जिंदगी पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। 2022 में शादीशुदा अकरब खवातीन को अपने बहन भाइयों या खून के रिश्तों में तनाव की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। साल के शुरू में ज्यादा हसद और शकूक शुबहात मियाँ बीवी की जिंदगी में किसी नाजुक सूरत हाल को पैदा कर सकते हैं। नाखुशगवार जज्बात को बाहर फेंकें। मुअज़्ज़ज़ अकरब खवातीनो हज़रात, यूरेनस गुज़श्ता चंद सालों से आपके सातवें यानी मोहब्बत के घर में मुकीम है, जिसकी वजह से आपके इज़्दवाजी तल्लुकात और दरीना मोहब्बत की आजमाइश होगी। इस पर सूरज और चांद ग्रहण के असरात भी तगय्युर और तबद्दुल पैदा करेंगे। 2022 में आपको अपनी ज्यादातर तवज्जो घरेलू जिंदगी और जज्बाती सेहत की तरफ मरकूज करनी चाहिए। अगर आपके ये मामलात दुरुस्त हुए तो दीगर मामलात भी दुरुस्त सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। अगर आप कंवारे हैं तो 2022 में आपका शादी करना शायद आपको ज्यादा अच्छे नताइज न दे। बेहतर होगा अगर आप अपनी शादी 2023 तक मुअख्खर कर दें। आपके मोहब्बत के मामलात में 2022 जहां पर अदम इस्तेहकाम लेकर आ रहा है, वहीं खुशियों भरी हिजान खेजी की कैफियत भी मौजूद रहेगी। आपके लिए मुनासिब है कि वक्त का फायदा उठाएं, लेकिन किसी बात को दिल पर मत लें। ऐसे ताल्लुक मत बनाएं जिनको आगे चलकर निभाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपको आपकी रूहानी जिंदगी की वजह से तख्लीकी सरगर्मियों का अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आपको न सिर्फ खुशी होगी बल्कि माली तौर पर भी काफी फवायद हासिल होंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले अफराद का 2022 मोहब्बत के लिहाज से कैसा होगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ कौस खवातीनो हजरात, दरहकीकत कौस खवातीन को समझना मुश्किल नहीं होता। फितरतन ये औरतें बहुत हमदर्द होती हैं और इन्हें दूसरों की मदद करने में रूहानी तस्कीन हासिल होती है। कौस औरत चूंकि समझने में आसान होती है, इसलिए जिनसे मुखालिफ इसकी तरफ बहुत जल्द और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। कौस खवातीन के बारे में इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि अगर उन्हें पहले मोहब्बत का नाकाम तजर्बा हो चुका हो तो दोबारा उन्हें मोहब्बत की तरफ माइल करना अगर नामुमकिन न भी हो तो कम से कम मुश्किल तरीन काम जरूर हो सकता है। ऐसी औरतें मिसाली बीवियां साबित होती हैं, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हैं और अगर इन्हें धोखा दिया जाए तो जख्मी शेरने की तरह बिहेव करती हैं। जबकि कौस मर्द ऐसी तबीयत रखते हैं कि शादी उनको आजादी का खात्मा महसूस होती है। अक्सर कौस मर्दों की शादी कम उम्री में हो जाती है और उनमें से अक्सर बाद में अपने इस गलत फैसले पर पछताते भी हैं। कौस मर्द ये पसंद करता है कि जिस लड़की को वो चाहे उसमें अक्ल दानिश का मादा मौजूद हो। कौस मर्द अक्सर तनकीद के आदी होते हैं, इसलिए खवातीन उनकी तरफ से बहुत जल्द ही बददिल हो जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियस खवातीनो हज़रात, आपकी रोमांटिक लाइफ 11 मई तक बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन 20 अगस्त के बाद से इस पर खासी हलचल पैदा हो सकती है। 2022 आपके लिए शादी या किसी सीरियस रिलेशन के लिए मुमकिन है ज्यादा साजगार ना हो, लेकिन आपके रौनक मेले, बेल मुलाकातों और बिलखुसूस रोमांस से भरी मुलाकातें करने के लिए बेहतरीन साल होगा। अगर आप किसी रिलेशन में हैं और तनाव महसूस कर रहे हैं तो कोशिश करें इस तनाव के असरात आपके पार्टनर तक न जाएं। अगर आपके पार्टनर की कुछ आदत आपको परेशान कर रही हैं तो उसे शाइस्तगी से, नरमी से हाथ पर हाथ रखकर आराम से बताएं और फिर इसका हल तलाश करने की कोशिश करें, जो आपको रोजमर्रा झगड़ों के बजाय ज़हनी सुकून फराम करे। मोहब्बत की जिंदगी भी एक तरह से आजमाइश होती है। जो लोग लंबे अरसे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके आपसी तल्लुकात में थोड़ा मुश्किल वक्त आ सकता है। इख्तिलाफात की वजह मालूम करने और पता लगाने के लिए
آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اس عمل میں ٹائم تو زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن معاملات جلد ہی اپنی صحیح جگہ پر آ جائیں گے۔ ممکن ہے 2022 میں محبت کے حوالے سے آپ کو کسی ایسے یاد رہ جانے والے واقعے کا تجربہ ہو جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے کہ زندگی میں کس سمت آگے بڑھنا ہے۔ 2022 میں آپ کے لیے ناواقف لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پارٹنر کے جذبات کو زیر غور رکھنا اور توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کوس مرد ایسا محسوس کریں کہ ان کے جذبات اور احساسات اپنے ساتھی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ممکن ہے کوس مرد رشتہ توڑ کر نئی محبت کی طرف بڑھنا چاہیں۔ آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تنازعات کا حل کریں تاکہ جلد بازی میں غیر حقیقی نتیجہ اخذ کر کے اپنے معاملات کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ بہتر ہے آپ کچھ چیزوں کے بارے میں اپنا نظریہ ہی تبدیل کر لیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے، مگر کیا کیا جائے کہ آپ کے لیے یہی مناسب ہے۔ 2022 میں شادی شدہ سیجیٹیریس مردوں کو فروری مارچ میں کاروبار یا محبت کے مسائل کا تھوڑا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ جون، جولائی اور اگست کے مہینے میں آپ کی جنسی قوت عروج پر ہوگی۔ آپ اپنے محبوب کو امپریس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ایز اے کپل آپ کی ازدواجی لائف میں شاندار رومانٹک وقت بن جائے گا۔ سیجیٹیریس عورتوں کے لیے 2022 میں سفر کرنے کی توقع موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا حلقہ احباب بھی وسیع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے اعتماد میں اضافہ اور کسی ضروری چیز کی تلاش کا رجحان 2022 میں آپ میں بہت زیادہ پایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے پارٹنر کی ہی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے قریبی دوست کو اپنی محبت کے بارے میں بتائیں، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے انتخاب سے ملوائیں تاکہ وہ بھی آپ کے انتخاب کے متعلق آپ کو آگاہی دے۔ یہ طریقہ مستقبل میں آپ کو بڑے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ 2022 میں شادی شدہ کوس عورتیں اپنے جذبات میں اضافہ محسوس کریں گی۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ سستی سے بچیں اور اپنے شوہر کی ناپسندیدہ باتوں سے درگزر کریں۔ اپنے شوہر کے والدین پر اپنا اچھا تاثر چھوڑنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی جوڑے میں مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کی ضروریات اور مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کر رہے ہوں۔ اس کی جگہ اگر آپ اپنا رویہ نرم رکھیں گے اور محبت بھرے دھیمے دھیمے الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ کے سارے غم دور ہو سکتے ہیں۔ بہت سی سیجیٹیریس خواتین جو شادی شدہ ہیں وہ بچے کی خواہش میں شدت سے مبتلا ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے ایسی صورت میں کسی خانقاہ یا روحانی ہستی کی زیارت کرنے کا ارادہ نیک ہوگا، اور اولاد کے حوالے سے آپ کو 2022 میں خوشخبری بھی مل جائے گی۔ 2022 میں آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات اگر بہت شاندار نہ بھی ہوں تو محبت ایک ایسا عنصر ہے جو تعلقات کے کھردرے کناروں کو ہموار کر سکتی ہے۔ معزز سیجیٹیریس خواتین و حضرات، 2022 میں آپ کو چاہیے کہ گھریلو امور کے ساتھ ساتھ حاصل شدہ ترقی کے مواقع سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ سال کے اختتام تک آپ پوری فیملی میں بہتر کمانے والے شمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ 2022 میں کچھ ایسا مشغلہ شروع کریں جس سے آپ کے جسمانی وزن کے بڑھنے کی شرح کم رہے۔ موٹاپا سراسر بیماری اور پریشانی ہے۔ ایسا کام کریں جس میں آپ کو حرکت کرنی پڑے۔ محبت خوشی اور عزم و حوصلے کا راستہ تلاش کر سکتی ہے۔ 2022 ایسا سال ہو سکتا ہے جس میں آپ محبت کے حوالے سے مطمئن رہیں۔ اگر کسی موقع پر آپ کو ٹینشن فیل ہو تو خدا کے اچھے ناموں میں سے کسی نام کو 100 دفعہ پڑھ لیں۔ آپ کو اپنے وجود میں خود سکون اترتا محسوس ہوگا۔ آپ کے غصے، تناؤ اور مایوسی کو آرام ملے گا۔ مسائل کو آپ حل کریں گے تو وہ حل ہوں گے، وگرنہ ممکن ہے وہ کوئی ایسی صورت لے کر ظاہر ہوں جو آپ کو سخت ناپسند ہو۔ ایسے کوس افراد جو سنگل ہیں ان میں سے کسی کو پہلی بار اپنی رومانوی زندگی کا احساس اور خوشی مل سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 2022 میں کسی کو پسند کریں اور اس کے قریب ہونے میں بھی کامیاب ہو جائیں، یا یوں کہ کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آپ کے سامنے اظہار کرے۔ لیکن ممکن ہے شادی کی خواہش کے لیے 2022 زیادہ مناسب سال نہ ہو۔ البتہ آپ کے لیے شادی سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جسے آپ محبت سمجھ رہے ہیں کیا واقعی وہ محبت ہے یا محض سحر ہے۔ جب آپ اپنے احساسات کے بارے میں یقینی کیفیت میں ہوں گے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ فائنل فیصلہ کر سکیں۔
अपने लिए ऐसे टारगेट्स का तयन करें जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। हवा में तीर चलाने की कोशिश से बचें। इस साल में आपके नए साथी से मिलने के इम्कान मौजूद हैं। जून के बाद का वक्त आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। ऐसे कौस अफराद जो अपने बुजुर्गों की रजामंदी के मुंतजिर हैं, उनके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। जिन लोगों का हाल में रिश्ता टूट चुका है, वो नए रिश्ते की तलाश में सरगर्दा रहेंगे और पुरानी चोटों का मरहम कर लेंगे। ताहम मशवरा है कि आप मशगूल रहने के लिए यानी टाइम पास करने के लिए मोहब्बत की तलाश मत करें, बल्कि मोहब्बत के लिए मोहब्बत की तलाश करें। ऐसा साथी चाहें जिसके साथ आप अपने जज्बात और जिंदगी का इश्तराक कर सकें। ज़हनी खलफिशार एक आर्जी चीज होती है। हो सकता है आप अपने साथी और खुद दोनों को धोखा दे रहे हों, क्योंकि टाइम पास ताल्लुक में आप अपना 100% नहीं दे सकते। अगर आप महसूस करते हैं कि आप मोहब्बत के रिश्ते के लिए आमादा नहीं है तो अपनी अकेली जिंदगी में मस्त रहें। मुमकिन है 2022 में आपकी तबीयत में ऐसा रुझान शामिल हो जाए कि आप ताल्लुकात को सिर्फ लुत्फ उठाने की सतह पर ही देखने लगें। आपको ये बात समझ कर रखनी चाहिए कि ऐसे ताल्लुकात जो सिर्फ टाइम पास होते हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं होती, और ऐसे ताल्लुकात ना ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। आपके जाचे के साथवें यानी मोहब्बत के घर मार्स यानी मरीख के होने की वजह से मुमकिन है आपके ताल्लुकात में इख्तियारात की कशमकश का अमल होना शुरू हो जाए। ये आपके लिए एक संजीदा पहलू है। आपके लिए मशवरा है कि इस कैफियत से दामन बचा लें ताकि आपके ताल्लुकात बाकी रह सके। अतारद आपका मोहब्बत का स्यारा होने के साथ साथ आपके कैरियर यानी 10वें घर का हुक्मरान स्यारा भी है, जिससे जाहिर होता है कि आप ऐसे लोगों की तरफ माइल होंगे जो प्रोफेशनल तौर पर कामयाब जिंदगी गुजार रहे हों और उनकी दुनिया में कोई हैसियत भी हो। 2022 में आप अपनी गुज़श्ता होने वाली गलतियों का मुशाहिदा करेंगे। उमूमी तौर पर देखा जाए तो आप 2022 में शादी की तरफ ज्यादा माइल होते नजर नहीं आते, और आपसे जो लोग मिलेंगे वो भी शादी के मामले में ज्यादा संजीदा न होंगे। आपसे दरखास्त है कि गुनाह के रिश्ते में मत रहें। खुदा ने निकाह का रिश्ता बनाकर हम इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। खुदा की नेमतों को याद कीजिए और अपने लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब कीजिए। खुदा आपका हामी और नासिर हो। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी से वाबस्ता अफराद का 2022 मोहब्बत के हवाले से कैसा गुजरेगा। रोजमर्रा जिंदगी के इज़्दवाजी पहलू और बिलखसूस मोहब्बत और शादी के मामलात में आपके हालात जिंदगी पर क्या असरात होंगे। वो लोग जो किसी की आस लगाए बैठे हैं या अभी अभी आगाज मोहब्बत कर रहे हैं, उनको मुमकिन तौर पर क्या हासिल हो सकता है। शादीशुदा और कंवारे जद्दी खवातीनों हजरात के अपने पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। शादी के मुंतज़िर अफराद की शादी 2022 में हो सकती है या नहीं। इसके अलावा अपनी जिंदगी और फैमिली रिलेशंस के मुतल्लिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ जद्दी खवातीनों हजरात, जद्दी औरत इंतहाई वफादार, मोहब्बत करने वाली और काबिल एतमाद दोस्त साबित होती है, लेकिन मोहब्बत का जुबान से इजहार करना उसके लिए मुश्किल काम होता है। वो अपने महबूब को धोखा नहीं देती। जद्दी औरत के चेहरे पर बहुत जल्द पुख्तगी आ जाती है, क्योंकि ये किसी हद तक संजीदा होती है। एक नुमाया खुसूसियत जो जद्दी औरतों में पाई जाती है वो ये है कि जो मर्द इनके जज्बात की कदर न करे उसे ये फौरन रिजेक्ट कर देती हैं और अपनी जिंदगी से उसे निकालने में देर नहीं करती। जबकि जद्दी मर्द शादी से पहले अपनी शरीके हयात को अच्छी तरह जानना चाहता है। जद्दी मर्द जिसे मुंतखब कर ले उसे हासिल करने के लिए मुकम्मल जोर लगाता है। जद्दी मर्दों की नुमाया खुसूसियत यह है कि ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिससे करते हैं उससे वफादारी करते हैं और अपने रिश्ते को निभाना जानते हैं। जद्दी खवातीनों हजरात, 2022 आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से इंतहाई मुस्तहकम रहेगा। अलबत्ता अगर कुछ मसाइल पैदा हुए तो उसकी वजह आप खुद होंगे, यानी आपकी तवज्जो अपने पार्टनर पर ना होने की वजह से आपके मामलात खराब हो सकते हैं। मजीद 2022 में लगने वाले चांद ग्रहण भी आपके रिलेशन में उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं। आपका मोहब्बत का सियारा चांद है, इसलिए चांद जिन दिनों में बढ़ रहा होगा आपके मामलात मोहब्बत में मुस्बत तब्दीलियां होती रहेंगी। 2022 आपके लिए ऐसा होगा कि गोया आपकी मोहब्बत आपका पीछा कर रही हो। आपकी एनर्जी की सूरत हाल भी बेहतर होगी। 2022 में आपको अपने मामलात को दुरुस्त करने
और अपने लिए रास्तों का इंतखाब करने में सियारों की मदद हासिल होगी। अलबत्ता कुछ गैर मुतवक्को तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। साल के इब्तिदाई चंद महीनों में आपको महसूस होगा कि अपनी लव लाइफ को ट्रैक पर रखने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। साल के बाकी हिस्से में आपको अपने रोमांस में नई रूह फूंकने का मौका मिलेगा। आप अपनी जाती जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रख पाएंगे। आप अपने साथी से ज्यादा मोहब्बत और ताउन की तवक्को कर सकते हैं। अगर आपको अपने साथी की तरफ से वो सब हासिल हो गया है जो आपका मनपसंद है, तो ये लम्हात आप दोनों के लिए इंतहाई पसंदीदा हो जाएंगे। आप में से बाज़ जल्दी ख़वातीन व हज़रात को अपने मोहब्बत के रिश्ते में चीजों को क्लियर करने की जरूरत पेश आ सकती है। इसी सिलसिले में मुमकिन है आपको अपने बहन भाइयों की सपोर्ट की अशद जरूरत हो। आपके बड़े बहन भाई आपके मामलात में इन्वॉल्व होके आपके मसाइल को हल करने में मदद फराम कर सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि बहन भाई और ये रिश्ते खुदा की तरफ से हैं। ये तमाम रिश्ते इंसानों के फायदे के लिए बनाए हैं। अपने बहन भाइयों और दीगर तमाम रिश्तों की केयर करें। यही चीज दुनिया और आखिरत में आपके काम आएगी। आपके बहन भाई जब आपके मसाइल के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे तो वो उनमें दरमियानी राह जरूर निकालेंगे और तनाज़ात को खत्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि रिश्तों की जरूरत इंसान को हर वक्त होती है। मुमकिन है साल के पहले 6 महीने आप अपने रिश्तों में थोड़ी सर्द महरी का सबूत दें। बेहतर होगा कि एक चीज में फंसे रहने की बजाय उस चीज से निकलें और बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। मुमकिन है अप्रैल तक चंद गलतफहमियों को दूर करके आप मामलात में बेहतरी पैदा करने में कामयाब हो जाएं। 2022 में आपका अपने साथी को म्यारी वक्त देना आपको एक दूसरे के करीब ला सकता है। आपकी बाहमी सूझबूझ बढ़ सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो साल का आगाज आपके लिए बेहतर अंदाज में होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि ऐसी बातें ना कहें जो आपके साथी को परेशान कर सकती हैं। अगर आपको उसके किसी तबसरे या किसी बात से तकलीफ पहुंचती है तो उस तक नरमी से अपना नुक्ता नजर पहुंचाएं। इससे कम से कम आप लड़ाई झगड़े से तो बच सकते हैं। आप अपने साथी से मोहब्बत और ताउन की तवक्को रख सकते हैं। साल के आखिरी दिनों में आपके ताल्लुकात मिसाली सतह पर मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके लिए खुशखबरी है कि आपके पार्टनर को उसके काम की जगह पर कुछ शानदार मौके मिलेंगे जो आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपका पार्टनर आपकी हर उस बात को पसंद करेगा जो उसकी हौसला अफजाई के लिए कहेंगे। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, 2022 ऐसे लोगों के लिए इंतहाई साजगार साल होगा जो अपनी आमदन में इजाफे के ख्वाब देख रहे हैं। अगर आप कोई सरमायाकारी करेंगे तो आपको कसीर मुनाफा हासिल हो सकता है। आपका मोहब्बत का जायचा आपको माजी की गलतियों के लिए अपने आप को माफ करने और अपने जज्बात को दूसरों से छुपाने की तरफ माइल कर सकता है। आपके लिए मुनासिब है कि बढ़ती हुई जिनसियत परस्ती के रुझान से बाहर आएं। हद से बढ़ी हुई जिनसियत परस्ती बाज़ जानवरों में पाई जाती है। 2022 में आपके लिए रूमानी तौर पर किसी शख्स से मिलने और जिंदगी के लिए अपनी मोहब्बत के तलाश करने के लिए बेहतरीन मौका होगा। खानदानी सतह पर भी आपको कामयाबियां मिलेंगी। जद्दी मर्दों को मोहब्बत के हवाले से माजी की तलखियों और मायूसियों से जान छुड़ानी चाहिए। ख्यालात ही ऐसी कुव्वत होते हैं जो हकीकत को तश्कील देते हैं। लिहाजा मुस्बत सोच आपके साथी को तलाश करने और खुश रहने में हकीकी किरदार अदा करेगी। फरवरी मार्च में किसी पुरकशिश शख्सियत से आपका वास्ता पड़ सकता है जो आपकी तरफ से शादी के प्रपोजल को कबूल करके आपकी मोहब्बत को तस्लीम करेगा। आपका खैरखा रवैया किसी खुशकुन मुलाकात के इम्कानात को रोशन कर सकता है। ऐसे जद्दी मर्द जो तवील अरसे से किसी रिलेशन में हैं 2022 में गैर मामूली वाक़े का सामना भी कर सकते हैं। जज्बात की गहराई आपको पुरजोश लम्हात का तजर्बा करने की इजाजत दे सकती है। अगर आप और आपका पार्टनर माली शोबे में एक साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये अमल आपके और आपके पार्टनर के माली असासों को बढ़ा देगा, जिससे आपके लिविंग स्टैंडर्ड में बेहतरी आ सकती है और इससे आपके ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। आपकी माली कामयाबी 2022 में आपकी शादी का बायस भी बन सकती है। शादीशुदा जल्दी ख़वातीन व हज़रात के लिए मशवरा है कि आप अपनी जिंदगी का एक मकसद तय करें और उसे हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें बुरुए कार लाएं।
और अपने लाइफ पार्टनर को अपने इरादों में शामिल रखें और जहां तक हो सके उसके नुक्ते नजर को साथ लेकर चलें। आपके लिए शक बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। शक की वजह से आप किसी भी चीज को मंतकी तौर पर सोचने समझने की अहलियत से महरूम हो सकते हैं। जद्दी खवातीन को मोहब्बत की तलाश में बहुत ज्यादा सफर नहीं करना चाहिए। आपके लिए उम्मीद अफजा ताल्लुकात आपकी काम की जगह या छुट्टियों के दौरान अपने इलाके में परवान चढ़ सकते हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए, जो आपसे मोहब्बत करता होगा वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और शादी की पेशकश भी कर सकता है। साल के इब्तदाई चंद माह में जब आपके लिए हालात थोड़े नासाजगार होंगे, उस वक्त वाकयात को अपने रास्ते पर जाने का मौका देने और पुरसकून तरीके से वक्त के बहाव के साथ चलने का बेहतरीन वक्त होगा। बेतकल्लुफ रवैया और कनेक्शंस में गर्मजोशी मोहब्बत को मजबूत बनाने और किसी कपल के बाहमी एतमाद में इजाफे की वजह बनते हैं। अलबत्ता आपको खबरदार किया जाता है कि फरवरी मार्च में आपकी किसी पुरानी मोहब्बत से दोबारा मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए आगे चलकर मसाइल भी पैदा कर सकती है। मुनासिब है नई तहरीकों से बाज रहें। अगर आप दोबारा अपने साबका की तरफ चले गए तो आपके मौजूदा रिश्तों में टूट फूट, कशीदगी और गड़बड़ की सूरत हाल बन सकती है। अगर आपने नई शादी की है तो ये बात आपके लिए हद से ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। 2022 में जद्दी खवातीनों हजरात और बच्चों में मुस्बत रुझानात जाहिर होंगे। ऐसे जद्दी अफराद जो किसी से शादी करना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल के बाद से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके जायचे के मुताबिक आपको शायद खुद ही शादी की ज्यादा ख्वाहिश न हो। आपके लिए मुनासिब है कि 2022 में अपने रवैये पर तवज्जो दें। अगर आपकी नीयत और इरादे दुरुस्त हुए तो आपके लिए हर मामले में आसानी पैदा हो जाएगी। गैर फितरी रिश्ते में रहना और दुरुस्त रास्ते के बजाय गलत रास्तों और तरीकों से अपनी तलबो चाह पूरी करना आपको दुनिया और आखिरत में परेशानियों में मुब्तला कर सकता है। मुनासिब है अपने मामलात के मुतल्लिक खुदा से मदद तलब करें, सब्र से काम लें, मुस्बत सोचें और पॉजिटिव रास्ते पर सफर करें। अपने वालिदैन का सहारा बने और उनके नाम को डुबोने का बायस बनने वाले अवामिल से महफूज रहें। यकीन रखें हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, जो अपने वक्त से एक लम्हा पहले या बाद में वुकू पजीर नहीं हो सकती। अगर आप कुदरत के मामलात में उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कुछ ऐड करना चाहें तो होगा तो वही जो खुदा चाहेगा, मगर आप अपने लिए ऐसे गड्ढे खोद सकते हैं कि जिनसे निकलना आपके बस में ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज दल्ब यानी एक्वेरियस के लिए 2022 में जिंदगी कैसे मामलात को लेकर आ रही है। एस्ट्रोलॉजी के वसी इल्म की रोशनी में आपसे तमाम मालूमात शेयर की जाएंगी। आपसे दरखास्त है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाज़रीन, मोहब्बत के हवाले से 2022 आपके लिए उमूमी तौर पर बहुत ज्यादा खुशगवार साल होगा और दौलत के हवाले से भी आप खुशकुन कामयाबियां हासिल करेंगे। बुनियादी तौर पर 2022 में आप अपनी जात के गिर्द घूमते रहेंगे और खुद को तामीर करने के अमल से गुजरेंगे। आप में से अक्सर लोग बुर्ज दल्ब की खुसूसियात से आगाह हैं। नाज़रीन, एक्वेरियस मर्द के लिए कहा जाता है कि वो अपनी वजाहत और जहानत से मुखालिफ जिन्स को अपनी तरफ कशिश करता है। ज़ीरक, ज़रीफ और बातूनी होने के साथ साथ एक्वेरियस मर्दों का तर्ज जिंदगी जिनसे मुखालिफ को बहुत जल्द मुतासिर कर लेता है। अगरचे ये कदरे शर्मीले होते हैं, लेकिन शादी से पहले रोमांस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मोहब्बत के मामले में बज़ाहिर संजीदा नजर आने वाले ये मर्द यकायक इस तरह लाताल्लुक हो जाते हैं कि उनके इस रवैये पर शदीद हैरत होने लगती है, जबकि दल्ब औरत मोहब्बत के मामले में बज़ाहिर सर्द महर नजर आती है, लेकिन दर हकीकत इस मामले में वो इंतहाई पुरजोश होती है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि इन्हें भरपूर तरीके से अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए। इनके बारे में ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर मर्द इनकी तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे तो सूरत दीगर ये अलहदगी इख्तियार करने में ज्यादा देर नहीं लगाती।
इनमें मर्दों के लिए एक खास किस्म की कशिश पाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ तलब ख़वातीन व हज़रात, 2022 में आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है जो आपके लिए फैसला कुन और हैरान कुन सफर साबित हो सकता है। 2022 में ऐसे तलब अफराद जो सिंगल हैं वो अपनी जिंदगी बसाना चाहते हैं और देर पा पार्टनरशिप के ख्वाह नजर आते हैं। कुछ एक्वेरियस अफराद मुमकिना तौर पर बैरून मुल्क सफर या किसी दोस्त में अपनी छुपी हुई मोहब्बत देख सकते हैं। मुमकिन है कोई गैर मुतवक्को मुलाकात हो जाए और आप अपनी मनचाही ख्वाहिश को अपनी आंखों से पूरा होता देख सकें। ताहम जैसा कि कहावत है कि कुछ मुस्बत के साथ मनफी भी आ जाता है। साल के पहले 6 महीनों में आप अपनी इनफरादियत की वजह से किसी किस्म के मसाइल की जद में आ सकते हैं। लिहाजा बेहतर है 2022 में अपनी जगह पर कायम रहें और याद रखें, कायम रहना कोई आसान काम नहीं होता। कायम रहें और तनाज़ात से बचने की कोशिश करें। 2022 में आप में से जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में हैं, आपकी लड़ाई होने का इम्कान भी ज्यादा है, इसलिए ऐसे लम्हात से अलग रहने की कोशिश करें। मोहब्बत एक आफाकी रिश्ता है जिसका ज़ुहूर दिल में होता है। आप में से जो सिंगल हैं वो एक तरह से दलेर होंगे, यानी अपनी मोहब्बत के सामने अपने जज्बात का इजहार दलेरी से करेंगे। साल के दूसरे हाफ में आपकी तमाम रूमानी सरगर्मियां पूरी होने का इम्कान है। आपके लिए इस साल लुत्फ अंदोज होने के लिए काफी कुछ है। आपकी मोहब्बत की केमिस्ट्री नाकाबिले यकीन हद तक सनसनीखेज और हैरान कुन हो सकती है। ताहम आप अपने हवास को खोने न दें। पलक झपकाएं, आंखें खोलें और आंखों पर बसीरत की ऐनक लगाकर चीजों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप और आपके पार्टनर के दरमियान कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है जो शुरू होते ही खत्म हो जाए। चीजों को आहिस्ता आहिस्ता कवर करना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ आपको रिश्ता खत्म होने से बचाने के लिए कुछ हुदूदो कयूद तय करनी होगी। एक्वेरियस माएं, आपको इस साल अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। आप में से अक्सर अपनी मोहब्बत की जिंदगी से खुश होंगी। बे औलाद खवातीन की औलाद की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। खुदा ने चाहा तो आपको औलाद की नेमत हासिल होगी, लेकिन याद रखें हर चीज में एक इम्तिहान मौजूद है। मुमकिन है सिंगल तलब खवातीन हजरात में से बेशतर इस साल तूफानी मोहब्बत का सामना करें। आप किसी बड़ी तब्दीली, खराब एटीट्यूड को दुरुस्त करने और मोहब्बत की जरूरत शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। इस साल आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसमें आप खुद ही दिलचस्पी लेना शुरू हो सकते हैं और नया रिश्ता बना सकते हैं। दरहकीकत आप किसी ऐसे शख्स के साथ रोमांस चाहते हैं जो आपके दोस्तों में से हो या पहले उससे शनासाई हो। बेहतर है वक्त के साथ सफर करें। वक्त से आगे निकलना भी कोई फायदा मंद बात नहीं होती। यूं आप हकीकत के बजाय बेसरोपा भाग रहे होंगे। वक्त के साथ आपका बहाव मुमकिन है आपको किसी ऐसे किनारे तक ले जाए जहां पहुंचकर आपकी सारी थकन उतर जाए और आपके रुए रुए से सुकून जाहिर होना शुरू हो जाए। बस आप वक्त का दामन थाम लें और याद रखें वक्त से पीछे रह जाने वाले लोगों के हाथ भी बहुत कम आता है। शादीशुदा एक्वेरियस खवातीनों हजरात के रिश्तों में इख्तिलाफात और तनाज़ात जन्म ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप और आपका साथी एक दूसरे से काफी मुतासिर भी होंगे। आपकी जिंदगी में हंगामा आराई का खदशा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके सितारे और प्लैनेट्स आपकी हिमायत करते नजर नहीं आते। अलबत्ता खुशकुन खबर यह है कि आप अपने मामलात के बारे में बड़े कमिटेड दिखाई देते हैं। आपके इस रवैये की वजह से मामलात को थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सकता है। आपके लिए मुनासिब है कि जब तक मामलात मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो आप पीछे ना हटें, वरना आप खुदा न खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल में आ सकते हैं जिसमें जुदाई का अंदेशा हो। मुअज़्ज़ज़ तलब खवातीनों हजरात, आपके लिए 2022 पुरजोश और मुहिमजूई से भरा हो सकता है। पिछले साल के मुकाबले में आपकी इमोशनल लाइफ में कुछ ज्यादा इजाफा हो सकता है। साल का आगाज आपकी मोहब्बत की जिंदगी के लिए बेहतरीन साबित होगा, लेकिन साल के सेकंड हाफ में मामलात में उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर आपने अपने रिलेशंस को पहली तरजीह में रखा तो साल का दूसरा हाफ मिसाली हो सकता है। मुमकिन है आपको अच्छे रिलेशंस में शानदार तजर्बा हासिल हो। आपके लिए मुनासिब है अपने रिलेशंस में फेयर रहते हुए आगे बढ़ें। वक्त आपको खुद ही बेहतर जगह तक ले जाएगा। बहार का मौसम आपके लिए रोमांस से भरा हुआ होगा, लेकिन गर्मियों के आगाज के साथ ही किसी साथी के साथ ताल्लुकात में मुश्किलात, इख्तिलाफात
اور آپ کے خاندانی اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اکتوبر نومبر میں آپ میں منفی رجحانات ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے لیے مناسب ہوگا کہ بہت زیادہ آزادی کی خواہش آپ کے لیے ایسے موقع پر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دلو مردوں کے لیے 2022 میں کسی جاننے والی خاتون کے ساتھ غیر معمولی حرکات اور اختلافات کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ آپ اپنی محبت کی خاطر اپنے کیریئر کو بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن ممکن ہے بعد میں اس عمل سے آپ کو پچھتاوا ہو۔ تاہم زیادہ امکان یہ ہے کہ کسی ایسے عمل کے نتیجے میں خوشگوار شادی اور محبت آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ بس آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے بالخصوص محبت اور کیریئر کے مابین کوئی فیصلہ کرتے ہوئے جلدی سے کام نہیں لینا۔ بہتر ہے اپنے انتخاب کردہ کے ساتھ مکمل طور پر لطف اندوز ہوں، محبت کی مٹھاس اور حرارت کو دل میں محسوس کریں۔ کوشش کریں عبادات اور وظائف اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آپ کو اپنے دوستوں اور والدین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو آج آپ انہیں بھلا رہے ہوں اور جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو اس وقت وہ آپ کو بھلا دیں۔ یقیناً ایسی صورت میں سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ملامت کریں اور کوئی راستہ پچھتاوے کے بغیر آپ کے پاس باقی نہ رہے۔ ممکن ہے اکتوبر نومبر میں آپ کے لیے ایسی صورتحال بن جائے کہ دو راستوں میں سے آپ کے لیے ایک راستے کا انتخاب کرنا ضروری ہو جائے۔ صورتحال یوں بھی بن سکتی ہے کہ یا تو آپ شادی کریں یا اپنے محبوب سے مستقل جدائی برداشت کریں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو بس خیال رہے بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ معزز دلو خواتین و حضرات، زیادہ تر شادی شدہ ایکویرینس 2022 میں شادی کے بندھن کو مضبوط بنانے کے قابل ہوں گے۔ ایسی صورت میں سارا سال آپ کے لیے پرسکون رہے گا۔ شادی شدہ حضرات کو بچوں کے معاملات میں توجہ دینے اور فیملی بجٹ کو منظم رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے دو سورج گرہن آپ کی رومانوی زندگی میں تھوڑی ہلچل پیدا کریں، جس کی وجہ سے آپ کے رومانوی معاملات میں وقتی اتار چڑھاؤ پیدا ہو جائے۔ دلو خواتین کے لیے 2022 میں رکاوٹوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھنے سے خود اعتمادی پیدا ہوگی، اس کی بدولت نئی دلچسپیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ فروری مارچ میں آپ کے کسی شادی شدہ آدمی یا قریبی دوست کے لیے اچانک جذبات محبت بھڑک سکتے ہیں۔ دلو خواتین کو ایسے موقع پر اخلاقی اصولوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے موقعوں پر خود کو قابو میں رکھیں تو اگلے چند مہینے آپ کے لیے پرجوش ملاقاتیں یا رشتہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے 2022 میں آپ کے تعلقات کی ترقی اور اضافہ خود آپ پر ہی منحصر ہوگا۔ اگر آپ میگنیفائنگ گلاسز میں دیکھتے ہوئے مردوں کی خامیوں کو ہی دیکھتی رہیں، برا بھلا کہتی رہیں یا غلطیاں تلاش کرتی رہیں تو حالات یقیناً مختلف ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں رشتوں کو جانچنے کے لیے بہترین معیار ہونا چاہیے۔ 2022 میں کچھ دلو خواتین کی بغیر محبت کے ٹوٹلی ارینج شادیوں کا امکان ہے، جن میں محبت کے جذبات شادی کے بعد پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان باہمی اعتماد اور مفادات کی بنیاد پر تعلقات استوار ہوں تو یہ شادیاں بہت کامیاب ثابت ہوں گی۔ 2022 میں آپ کے لیے مشورہ ہے کہ طبیعت بوجھل ہو تو آرام کریں اور سکون کے لیے ذکر خدا کا سہارا لیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 2022 برج ہوت یعنی پائسس کے لیے ازدواجی تعلقات، محبت اور شادی کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندانی تعلقات کے حوالے سے کیسا گزرے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز پائسس خواتین و حضرات، مرکری یعنی عطارد آپ کی محبت کے گھر کا حکمران سیارہ ہے، جو آپ کے محبت کے گھر میں طرح طرح کی تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ 2022 سنگل ہوت افراد کے لیے خاص طور پر کلرفل رہے گا، کیونکہ آپ 2022 میں خود کو کسی کے پیار میں ڈوبا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ میں اپنے پارٹنر کی تلاش کا رجحان اپنے عروج کی طرف بڑھا ہوا ہو۔ اوورآل 2022 محبت کے حوالے سے ملا جلا رہے گا، کیونکہ بنیادی طور پر آپ کا محبت کا گھر زیادہ طاقت میں نہیں ہوگا۔ مارچ 2022 میں آپ اور آپ کا پارٹنر دونوں رومانوی احساسات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کے جذبات میں شدت کے ساتھ افہام و تفہیم بھی شامل ہوگی۔ عمومی طور پر ان دو چیزوں کا یکجا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر شدت سے پیدا ہونے والے احساسات
फिक्र और सोच के अमल को रोक देते हैं, लेकिन आप अपनी इन खूबियों को बेहतर तौर पर निखारने के लिए मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। मुअज़्ज़ज़ हूद ख़वातीन व हज़रात, जून से सितंबर तक के महीने आपके लिए हैरतों से भरे हुए हो सकते हैं। मुमकिन है कोई नया रिलेशन बने जो काफी दूर तक जाने वाला हो। आपके लिए इन महीनों में अपने ख्यालात और एहसासात को हकीकी आंखों से देखना होगा और मनफी रुझानात से जान छुड़ानी होगी। आप में से जो शादीशुदा हैं वो रूमानी खुशियों से लुत्फ अंदोज होंगे। नवंबर के महीने में मुमकिन है आप अपने साथी के मामले में किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार हो जाएं। शख्सियत का तसादुम इसमें एक आम वजह हो सकती है जो रिश्ते में मनफी नताइज पैदा कर सकती है। अक्टूबर के महीने के बाद आप बहुत से मसाइल को समझदारी से हल करने के काबिल हो जाएंगे। आपके एतमाद में इजाफा होगा और आप अपने साथी के साथ टेबल पर बैठकर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको कामयाबी होगी। 2022 में आपके जायचे की रूह से आपको अपने गुस्से और मिजाज पर थोड़ा काबू रखने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये आपके ताल्लुकात को मुस्बत रुख पर ले जाने के लिए मददगार साबित होगा। शादीशुदा हूद अफराद इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके अपने लाइफ पार्टनर और ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात में किसी भी वजह से कशीदगी न पैदा हो, क्योंकि इस तरह आपके रिलेशंस में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। 2022 में आपका मोहब्बत का घर खाली होने की वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ी मुश्किल में नजर आती है। आप सबसे बेहतर तौर पर जानते हैं कि मोहब्बत आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। मुनासिब है छोटे छोटे इश्यूज और गैर आम मामलात में लड़ना तर्क कर दें, अपने रवैये को वाजे करें और अपने पार्टनर को उसकी जगह दें। ये आपके बामानी और अच्छे ताल्लुकात को बचाने के लिए मुफीद मशवरे हैं। आपको चाहिए कि अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त भी एहतियात से काम लें। चिड़चिड़ापन और सख्त गिर अल्फाज ताल्लुकात में हमआहंगी को खराब करने की वजह हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और अपने पसंद के साथी के मुंतजिर हैं तो उम्मीद अफजा मौके मिल सकते हैं। मुनासिब है ऐसी तलाश में किसी नावाकिफ पर जल्दी भरोसा न करें और याद रखें कि किसी शख्स को आजमाइशों और जिंदगी की मुश्किलात से गुजर कर ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। आपके शानदार मुस्तकबिल में एतमाद ही आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। ऐसी सूरत में आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपकी खामियों पर तवज्जो नहीं देंगे। तवील अरसे से प्यार करने वाले शख्स अपनी मोहब्बत के बारे में अपने महबूब को बताने के काबिल हो सकते हैं। मुमकिन है आप अपनी पसंद को भी अपने ख्यालात की पुरस्रार गहराइयों में ले जाएं, जहां पर आप दोनों खुद को मुकम्मल महसूस करें। 2022 में यूथ मर्दों को जो गैर शादीशुदा हैं ये देखना चाहिए कि वो किन पानियों में तैराकी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी से दरअसल क्या चाहते हैं। आपका मोहब्बत का जायचा आपको खबरदार करता है कि किसी नाकाबिले हुसूल चीज के लिए बेकार में आहें भरने से आप किसी उम्मीद अफजा पहलू को जाया कर सकते हैं। आओ फुगा से बाज रहें, हाय वाय से परहेज करें, कुछ गलत हो तो सब्र करें और ठीक होने पर शुक्र अदा करना मत भूलें। 2022 में बहुत से स्पाइसेस मर्द मुलाजमत में तब्दीली की वजह से अपने हल्का आबाब को वसी होता देखेंगे। मुमकिन तौर पर आप नई और दिलचस्प खवातीन से मिलेंगे और मोहब्बत पाएंगे। बस ये उम्मीद न रखें कि आप कुछ न करें और सब खुद ब खुद ही हो जाए। कोशिश करने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 2022 में आपके लिए मशवरा है कि किसी मुंतखब शुदा शख्स को रेस्टोरेंट में मदऊ करना और उससे लजीज खाने पेश करना आपके तल्लुक को बामे उरूज पर ले जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, 2022 में जो अफराद अपने मुंतखब करदा के लिए रूमानी जज्बात रखते हैं, आपके लिए एक साथ जिंदगी गुजारना बेहतर है, वरना यूं वक्त गुजरेगा दूरी आपको खाती जाएगी। अगर हालात यूं हुए तो इस गैर मामूली सूरत हाल में आप बोझल महसूस करने लगेंगे। शादीशुदा मर्दों को कम्युनिकेशन और नक्लो हमल के साथ साथ घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेना अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से आपके अपनी शरीके हयात के साथ मजीद हमआहंगी हो जाएगी। जून जुलाई में आपकी जिंदगी में साजगार तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। आप बैरूनी मुल्क सफर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई शराब नोशी जैसी लानत का शिकार है तो 2022 में ये आदत आपकी घरेलू जिंदगी को तबाह कर सकती हैं। 2022 में खुद खवातीन को मुतनब्बे किया जाता है कि मर्द न सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए होते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में बेहतरीन सहारा भी साबित होते हैं।
لیکن اگر آپ نے اپنی مبالغہ آرائی یعنی چھوٹی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نہ چھوڑا تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے اخلاقی مسائل کے لیے اپنے دوستوں سے مدد طلب کریں۔ 2022 میں اونٹ خواتین کے لیے مشورہ ہے کہ وہ محبت کے لیے زیادہ تگ و دو نہ کریں، خود میں مثبت چیزوں کو بھر لیں اور خیالی مثالی محبت کی تلاش میں نہ الجھیں۔ فروری مارچ آپ کو ذاتی اور رومانوی خوشی کا احساس دے گا۔ آپ اپنے پارٹنر کے کسی ذاتی راز سے بھی آگاہ ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو منفی جذبات کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اچھی کیئر کرتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ کی ضرورت ہے۔ یوں آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ فروری مارچ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات رومانوی محبت سے بھر جائیں گے اور اچھے جنسی تعلقات کی بدولت تمام منفی رجحانات دم توڑ جائیں گے۔ ایسے ہوت افراد جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 2022 کچھ زیادہ سپورٹ نہیں کر رہا، البتہ پیسے کے معاملے میں آپ کے پاس بہت سی خوشخبریاں موجود ہیں۔ مشتری آپ کے برج میں ہونے کی وجہ سے آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ 2022 میں آپ کا محبت کا گھر کم قوت میں ہونے کی وجہ سے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز اور میل ملاقاتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ 2022 میں آپ کی پہلی ترجیح اپنے آپ کو خوش رکھنے کی ہونی چاہیے۔ جب آپ خوش ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کنواروں کے شادی کے امکانات تو کم ہیں، البتہ شادی شدہ کی زندگی کافی پرسکون رہے گی۔ معزز ہوت خواتین و حضرات، محبت کا قانون بہت سادہ سا ہے اور جوڑے نصیبوں سے بنتے ہیں۔ بعض اوقات سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کچھ نہیں کر سکتا اور کئی دفعہ خالی جھولی فوراً بھر جاتی ہے۔ جدوجہد ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی اور منزل کا پہلا سنگ میل ہوتی ہے۔ اپنے معاملات میں احکام خداوندی کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔